Hello, viewers. So, before talking about anything, let me tell you all, guys. Sorry to upload so lately. हमारे भी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स चलते हैं मेडिकल में भी, तो उसके प्रिपरेशंस के लिए थोड़ा सा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था. सो but from now I'll upload regularly some new videos and try to clear all your doubts. So now let's jump into the topic, that is regulation of respiration. This would be the last video for breathing and expiration chapter. सो थोड़ा ध्यान से सुनना. ये टॉपिक भले ही एनसीईआरटी में बहुत एक छोटा सा पैराग्राफ में दिया हुआ है, बट दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक. तो हम रेगुलेशन किस तरीके से कर सकते हैं? हाउ कैन वी रेगुलेट? सो now regulation of respiration, okay, we can do it by two ways. Okay, regulation can be done by two ways. First is your neural regulation, and then comes chemical regulation. Okay, then this neural regulation takes place where? In brain, that too mainly in pons and medulla. Okay, pons and medulla. Then here your chemical regulation is via chemoreceptors. Okay, chemoreceptors, and this is sensitive to chemoreceptor. Mark me. Actually, in this chapter, the most important thing is you have to pay attentions on the words, on the sentence. Okay, this is chemoreceptors, and chemoreceptors are, okay, I am using chemoreceptors are, not central chemoreceptor or anything else. Okay, chemoreceptor, all kinds of chemoreceptors. Okay, later on I will discuss what kind of chemoreceptors and why in NCERT it is mentioned that chemosensitive area is only sensitive to CO2 and H plus, not any other ion. Okay, for time being, just understand that all chemoreceptors, I am talking about all chemoreceptors, are sensitive to O2, CO2 एंड H प्लस. ओके, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है आपको वर्ड समझने. ठीक है, केमो रिसेप्टर, इज इट केमो रिसेप्टर और केमो सेंसिटिव एरिया नियर टू सेंट्रल रिदम सेंटर. ओके, ये सब वर्ड्स आपको समझना है, बाकी एवरीथिंग एल्स इज ओके. सो now first we will discuss about neural regulation. Okay, simply neural regulation. Okay, so in neural regulation, if this is the brain, okay, let us hope it's your brain from back side. Okay, so it's brain stem, it looks something like this. Okay, so this is योर सेरिबेलम. ये सब क्या है? सेरिबेलम वेरिबेलम है, ये सब हम विल सी इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके, बट फॉर टाइम बिंग जस्ट थिंक इट टू बी पॉन्स. हियर इज मेडुला. ओके, नाउ इन पॉन्स divide this region into two parts. Okay, two parts. Okay, here it is upper half. Okay, it is lower half. Okay, so what happens in this upper half? We have two types of nuclei. Here one thing, here one thing. Okay, so these two things in the upper half, it is called pneumotaxic center. So pneumotaxic center is located at upper half of pons. Okay, upper half consists of pneumotaxic center, pneumotaxic center, pneumotaxic center, and this lower half, it contains apneustic center, apneustic center, and this medulla, it consists of, okay, the thing that you have to remember here is here it is something like this, and don't go for the positions. You have to just remember you have three things here. Okay, first thing in medulla is DRC, DRG, not C, DRG and VRG. Okay, then PBC. This
VRG is dorsal respiratory group of neurons. Okay, so all this whatever I am talking here are just neuron and area. Okay, so it is upper part, it is pneumotoxic center. Upper half of pons contains this, lower half contains apneustic center, and here in medulla you have PBC, that is pre-Bossinger complex. You didn't have to remember all these names. The only thing that you have to recollect is that medulla controls what and how. Okay, so for that, for time being, just remember this PBC, DRG, VRG. Okay, DRG is what? Dorsal respiratory group of neurons, and VRG is ventral respiratory groups of neuron. Now let's begin from pons. Okay, in pons we have two things. What? One is apneustic center and another one is pneumotoxic center. Okay, pneumotoxic center. Now what does this apneustic center does? The main role of apneustic center via DRG, okay, it prolongs the inspiration. So its main role is it controls inspiratory rhythm. Okay, you can say somehow it is controlling inspiratory rhythm. So I can say that it prolongs, its main role is prolong inspiration, or somehow you can say it also maintains respiratory rhythm. ठीक है, rhythm control we can just say it. But mark my words again, in rhythm control, if I say it controls rhythm, along with apneustic center many more centers will be added. So we must only focus on not rhythm control. For rhythm control I will explain you how and what things controls the rhythm. For time being, just remember one thing, pons main function is it prolongs inspiration. Okay, it prolongs inspiration. The words are very important. Okay, in pons, apneustic center prolongs inspiration. Then pneumotoxic center, its main role is it inhibits apneustic center. Okay, its main role is it inhibits apneustic center. Now this thing, apneustic center prolongs inspiration, but this pneumotoxic center, it inhibits apneustic center. Means somehow if you are inspiring in a high rate, okay, suppose you are unstoppably inspiring, that will never happen. So हम हमेशा के लिए इंस्पायर नहीं कर सकते, है ना. So something is needed to stop that inspiration, and that thing is this pneumotoxic center. So ये सब चीज़ें मिलके apneustic center, pneumotoxic center and another things. Okay, another thing is your vagal stimulation from lung. Okay, vagal efferents. Okay, from lungs, this thing, it also inhibits apneustic center. So this controls this, which ultimately controls this. और इसको कंट्रोल करने के लिए भी apneustic centers need another thing that is present in medulla. Okay, so now coming into medulla. So rhythm, इसीलिए मैंने यहाँ पे rhythm control को काट दिया under the function of this apneustic center. Okay, so medulla, in medulla we have PBC, then VRG, and then DRG. This is the most important thing in your respiration. Most important thing, आप रेस्पायर कर रहे हो ड्यू टू दिस रीज़न, बिकॉज इट इनिशिएट्स योर रेस्पिरेशन. ओके, इनिशिएट्स इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन को इनिशिएट कर रहा है, मतलब हम कह सकते हैं इट ऑल्सो इनिशिएट रेस्पिरेशन, बिकॉज दिस इंस्पिरेशन इज एक्टिव एंड एक्सपिरेशन इज पैसिव. सो इफ समथिंग इज इनिशिएटिंग रेस्पिरेशन, इट मस्ट बी इनिशिएटिंग योर एक्सपायरेशन इनडायरेक्टली. ओके, so it is the most important thing. Now what you have to remember at your level is medulla is responsible for initiating respiration. Okay, medulla is responsible for initiating respirations. Mark my words very clearly. Okay, medulla initiates respiration. Now VRG, देखो, expiration as I always say is a passive process, but whenever you do exercise or certain strenuous job, so at that time it become
एक्टिव प्रोसेस, उस समय आपको एक्स्ट्रा मसल्स चाहिए. सो आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्सफुल एक्सपायरेशन. फोर्सफुल expiration. So at that time you need VRG. So VRG controls your expiration during exercise or any forceful expiration activities. Okay, so it controls expiration during exercise लिख लेते हैं. Okay, exercise. Now DRG. Okay, DRG क्या है? DRG dorsal respiratory group of neurons. So this DRG, it is this now link this DRG. एक्चुअली मैंने यहाँ पे कहा था आपको एपन्यूस्टिक सेंटर प्रोलॉन्ग्स इंस्पिरेशन वाया समथिंग एल्स एंड दैट समथिंग एल्स इज DRG. मैं बताऊँगा किस तरह से क्या होता है. सो एपन्यूस्टिक सेंटर जो भी इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है इज विद दिस DRG. सो मैं कह सकता हूँ DRG is something which maintains inspiration. Okay, means it makes the respiration. आप जो respiration initiate तो हो गया, मतलब इंस्पिरेशन इनिशिएट तो हो गया, बट हाउ मच इंस्पिरेशन यू विल टेक. ठीक है, आपका टाइडल वॉल्यूम आप ले सकते हो ना 500 ml, यू कैन टेक 500 ml. ठीक है, अब वो 500 ml आप लेते कब हो? ड्यू टू दिस DRC. ओके, इंस्पिरेशन स्टार्ट हो गया ड्यू टू PBC. नाउ आपको कब तक सांस लेना है? ठीक है, अब सांस नहीं लेना है मेरे को, अब सांस बंद कर देना है. सो दैट थिंग विच स्टॉप्स और विच समहाउ रेगुलेटिंग योर इंस्पिरेशन और रेस्पिरेशन इज दिस DRC. इट मेंटेन्स your TV volume, that is tidal volume 500 ml. So DRC. Now what you have to remember is medulla is responsible for initiation of respiration. Medulla causes this controls expiration during exercise. Medulla maintains tidal volume of 500 ml. Okay, now let us correlate all those things. Okay, सो पूरा इंस्पिरेशन किस तरह से होता है अब वो देखेंगे. ओके, इंस्पिरेशन नहीं, रेस्पिरेशन. ठीक है, पूरा रेस्पिरेशन एक साथ देखेंगे, क्या कहाँ पे कैसे क्या होता है सब देखेंगे. सो रेस्पिरेशन कंटेन्स टू प्रोसेस. व्हाट? इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन. ओके, सो दिस टू प्रोसेस कंप्राइजेस रेस्पिरेशन. सो इंस्पिरेशन में क्या होता है? पहले तीन फेजेस आ जाएंगे. ठीक है, इंस्पिरेशन में 3 चीज़ें आएंगी. किसी भी चीज़ दुनिया में कोई भी चीज़ हो रहा हो, इट कंटेन्स ऑलवेज 3 थिंग. 1 इनिशिएशन स्टेप, मेंटेनेंस स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप. सो इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है? ये है इनिशिएशन स्टेप, देन मेंटेनेंस स्टेप, देन आफ्टर मेंटेनेंस स्टेप इज योर maintenance step, and here it is termination step. Okay, termination step. So initiation, मैंने क्या कहा था? initiation कहाँ से होगा? So initiation is by PBC, pre-Bozinger complex. It initiates your respiration, inspiration. So PBC विथ ग्रुप ऑफ क्रेनियल नर्व्स. ठीक है, वो आपको जानना नहीं है. 3, 4, 5 होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के क्रेनियल नर्व्स. 3, 4, 5 दैट इज़ कॉल्ड फ्रेनिक नर्व. ठीक है, तो फ्रेनिक नर्व्स वाया दिस इट कंट्रोल्स योर डायफ्राग्राम. ठीक है, PBC आपके डायफ्राग्राम इट कॉन्ट्रैक्ट्स डायफ्राग्राम. ओके, PBC वाया फ्रेनिक नर्व कॉजेज डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्शन विच अल्टीमेटली लीड्स टू इंस्पिरेशन. सो इनिशिएशन इस तरह से हुआ, इंस्पायरेशन. ठीक है, सो आपको क्या याद रखना है? इनिशिएशन इज बाय दिस फ्रेनिक नर्व, डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्शन, इंस्पिरेशन. एंड PBC के जगह पे मेडुला याद रख लो. ठीक है, मेडुला. सो मेडुला समहाउ विद दिस प्रोसेस इट इनिशिएट्स योर रेस्पिरेशन. नाउ मेंटेनेंस स्टेप. रेस्पिरेशन तो आपने ले लिया, कब तक? ज़िंदगी भर इंस्पायर ही करोगे क्या? इंस्पायर के बाद एक्सपायर भी तो करना है ना. सो फॉर दैट मेंटेनेंस स्टेप इज़ नीडेड. सो मेंटेनेंस स्टेप कैसे होता है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो. यहाँ पे क्या होता है कि वी हैव आवर एपन्यूस्टिक सेंटर. इसको दूसरे कलर से लिखते हैं. मेंटेनेंस स्टेप
apneustic center. Okay, so here in this apneustic center of lower pons, it activates, okay, activates your dorsal respiratory group of neurons. ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को जैसे ही एक्टिवेट करता है, इट कॉजेज अ रैम्प सिग्नल. ठीक है, एक सिग्नल होता है, एक सिग्नल आता है, एंड दैट सिग्नल रिजल्ट्स टू मेंटेन अ टाइडल वॉल्यूम ऑफ 500 ml. ठीक है, ये सिग्नल आपके लंग्स में मेंटेन कराता है टाइडल वॉल्यूम ऑफ 500 ml और सम वॉट एवर योर कैपेसिटी इज. ओके, ये मेंटेनेंस स्टेप है. एपन्यूस्टिक सेंटर स्टिमुलेट्स व्हाट, डीआरजी. एपन्यूस्टिक सेंटर डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता है इसको, इट कंट्रोल्स वाया दिस थिंग दैट इज डीआरजी. सो ये दोनों एक तरह से रिदम को इनिशिएट कर रहे हैं, रिदम को एक तरह से मेंटेन करें. बट अब टोटल रिदम मेंटेनेंस कैसे होता है वो देखो, टर्मिनेशन स्टेप में वो हम पता करेंगे. अब आप ज़िंदगी भर इंस्पायर नहीं करोगे, यू हैव टू स्टॉप दैट थिंग. सो फॉर दैट थिंग यू हैव टू थिंग्स. मैंने बताया था एपन्यूस्टिक सेंटर को अगर हम रोक दें, सो सिग्नल्स आ जाएंगे स्टॉप. तो टाइडल वॉल्यूम जैसे ही 500 ml कंप्लीट हो जाएगा, एपन्यूस्टिक सेंटर को अगर मैं स्टॉप कर दूँ तो डीआरजी स्टॉप हो जाएगा. डीआरजी स्टॉप हो जाएगा तो ये और इंस्पायर नहीं कर पाएगा. सो फॉर दैट रीज़न वी हैव टू इनिबिट एपन्यूस्टिक सेंटर. सो एपन्यूस्टिक सेंटर को आप कैसे इनिबिट करोगे, दो चीज़ें मैंने बता दिया था. एक है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एंड अनदर थिंग इज योर वैगल स्टिमुलेशन फ्रॉम लंग्स. सो ये दोनों थिंग्स, both of these things inhibits your apneustic center, and ultimately this apneustic center inhibits your DRG, and then your respiration is stopped, inspiration is stopped, and which ultimately led to your expiration, because expiration is a passive process. That's why it don't need any of the neurons involvement unless and until you are doing the active thing, that is exercise. Once you start beginning doing exercise, that time another thing will come into play, and that is VRG, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है. ओके, सो अब जो चीज़ है, अब आप ये समझ गए हो. अब क्या होता है कि आपके सामने कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि अ पर्सन इज़ गोइंग एंड उसके सर पे चोट लग गया, एंड ड्यूरिंग हिज इंजरी हिज मेडुला वॉज डिस्ट्रॉयड. ओके, मेडुला पहला केस है, मेडुला डिस्ट्रॉयड. नाउ क्वेश्चंस आते हैं, दैट पर्सन विल इंस्पायर, दैट पर्सन विल नॉट. ऑप्शन ए क्वेश्चन आएगा, पर्सन इंस्पायर करेगा, ठीक है, बट रेस्पिरेशन नहीं कर, बट ये एक्सपायरेशन नहीं कर पाया. सो ही कैन डू इंस्पिरेशन, आई फॉर इंस्पिरेशन, कांट डू एक्सपिरेशन. फिर बी आएगा कंप्लीट डेथ. ओके, कंप्लीट डेथ. सी आएगा जस्ट इसका रिवर्स. ओके, कांट एक्सपिरेशन, यहाँ एक्स कर देते हैं या आई एन कर देते हैं, ठीक है, कांट एक्सपायर बट डू इंस्पिरेशन. और डी होगा रेस्पिरेशन टू सम एक्सटेंट बट नो डेथ. ठीक है, रेस्पिरेशन टू सम इंस्टेंट बट नो डेथ. ठीक है, डेथ नहीं होगा ये कहना चाहता है. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना डायरेक्टली बोल रहा हूँ, मेडुला में अगर हुआ कोई भी इंजरी तो क्या डिस्ट्रॉय होगा. ठीक है, तो डिस्ट्रॉय होगा आपका क्या, पी सी, और क्या है मेडुला में, बाकी सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे VGR, DRC, VRG, DRG, ऑल दिस थिंग्स आर इन योर मेडुला. तो जब मेडुला डिस्ट्रॉय हो गया, DRG का क्या काम है, मेंटेन रेस्पिरेशन, मेंटेन ही नहीं होगा. और सबसे बड़ी बात, PBC ही डिस्ट्रॉय हो गया, प्रीवोजिंगर सेंटर ही कॉम्प्लेक्स ही डिस्ट्रॉय हो गया. सो आपका कैसे वो इंस्पायर स्टार्ट ही कैसे करेगा. तो द पॉइंट व्हेन ही इज़ अनएबल टू इंस्पायर बिगिन हिज इंस्पिरेशन, तो वो जिंदा कैसे रहेगा, हाउ कैन ही डू इंस्पिरेशन. ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन में पूरा आंसर होगा कंप्लीट डेथ. ओके, मेडुला डिस्ट्रॉयड मीन्स कंप्लीट डेथ ड्यू टू इनएबिलिटी इंस्पायर. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज उसके पोंटोमेडुलरी जंक्शन में एक्सीडेंट हुआ और हिज पोंटोमेडुलरी जंक्शन. ओके,
पोंटोमेडुलरी जंक्शन क्या है? मेडुला एंड पॉन्स के बीच का जंक्शन, ठीक है। मेडुलरी जंक्शन डिस्ट्रॉयड, ओके। मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है बट ओके, पोंटोमेडुलरी जंक्शन, ठीक है। मेरे वर्ड्स को सुनते रहो, देन थोड़ा बहुत मैच कर लो, आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं लिख रहा हूँ। सो लिसन माई वर्ड्स वेरी केयरफुली। पोंटोमेडुलरी जंक्शन डिस्ट्रॉयड हो गया, सो तब क्या होगा? उससे पहले आपको क्या जानना है पोंटोमेडुलरी जंक्शन में है क्या। मैंने क्या कहा था, पोंटोमेडुलरी जंक्शन में आप क्या सोच सकते हो, इस जगह पे पूरा गया, मतलब हम बेसिकली देखेंगे उसका लोअर पॉन्स। सो लोअर पॉन्स में जो भी है ऑल दोज थिंग्स डिस्ट्रॉयड। सो लोअर पॉन्स में, तो लोअर पॉन्स में आपका क्या है? एपन्यूस्टिक सेंटर। एपन्यूस्टिक सेंटर, अभी मैंने क्या कहा था, एपन्यूस्टिक सेंटर का क्या काम है? एपन्यूस्टिक सेंटर का काम है इट रेगुलेट्स योर रेस्पिरेटरी रिदम, ठीक है। समहाउ रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करने के लिए एपन्यूस्टिक सेंटर इज ऑल्सो नीडेड, बिकॉज डीआरजी के पास जो भी सिग्नल्स आते हैं, क्योंकि ये तो मेन चीज़ है रेस्पिरेशन के लिए, बट इसके पास जो भी सिग्नल आते हैं दैट कम्स थ्रू दिस। सो अगर यही खराब हो गया तो योर रेस्पिरेशन रिदम विल बी नॉट मेंटेन, ठीक है। सो रिदम इफेक्ट होगा, यानी कि इरेगुलर ब्रीदिंग, ठीक है। इसमें नो डेथ बट इरेगुलर ब्रीदिंग, इरेगुलर रेस्पिरेशन, इरेगुलर रेस्पिरेशन, ओके। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जहाँ पे एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको याद कर लेना है, एंड दैट थिंग इज़ योर केमिकल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, ओके। सो केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन दो तरीके से। सो पहला है आपका, देखो बार बार मैं कह रहा हूँ, इस जगह पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्लेवरनेस ऑफ योर एग्जामिनर, ओके। और वो कैसे करोगे? एक एक वर्ड जो भी वो क्वेश्चन में होगा ना, उसको ध्यान से पढ़ना है। थोड़ा नेग्लिजेंस, 4 मार्क्स आपके गए विथ अ नेगेटिव मार्क, सो यू विल लूज 5 मार्क्स, ठीक है। याद रखो, एज अ होल हम यहाँ पे वर्ड करते हैं केमो रिसेप्टर्स। केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन इज डन बाई केमो रिसेप्टर्स, केमो रिसेप्टर्स, ठीक है। आपके एग्जाम में केमो रिसेप्टर्स भी आता है, और कभी कभी एग्जामिनर्स कैन यूज़ सेंट्रल केमो रिसेप्टर्स, और इसकी जगह पे यहाँ पे लिख देते हैं सेंट्रल केमो रिसेप्टर्स और पेरिफेरल केमो रिसेप्टर्स, ठीक है। एग्जाम में मेनली क्वेश्चंस पेरिफेरल केमो रिसेप्टर्स आपके लेवल की चीज़ नहीं है, बट कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, मैं कैसे, किस लिए वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, मतलब जानने के लिए, बिकॉज कभी कभी आंसर हम एक्सपेक्ट कुछ करते हैं लेकिन होता कुछ और है। सो दैट्स व्हाई आई विल एक्सप्लेन यू पेरिफेरल केमो रिसेप्टर्स ऑल्सो। सेंट्रल केमो रिसेप्टर्स जो है, they will never ask you directly this central chemoreceptors, okay. Chemoreceptors as a whole they can use, but here central chemoreceptor, in spite of that, they can use your words like chemosensitive areas just adjacent to rhythm centers, okay. सेंट्रल केमोरिसेप्टर की जगह पे वो ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मार्क माई वर्ड्स, केमो सेंसिटिव, ओके, केमो सेंसिटिव एरिया एडजेसेंट टू, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें, एडजेसेंट टू रिदम सेंटर, ओके, रिदम सेंटर। सो केमो सेंसिटिव एरिया एडजेसेंट टू रिदम सेंटर, ठीक है। अब बताओ ये रिदम सेंटर कहाँ पे है? अभी मैंने कहा था रिदम सेंटर कहाँ है? ब्रेन में, पॉन्स मेडुला। सो रिदम सेंटर पॉन्स मेडुला है, इसका मतलब ये केमो सेंसिटिव एरिया एडजेसेंट टू रिदम सेंटर, यानी कि सेंट्रल केमो रिसेप्टर ब्रेन में ही होगा, ब्रेन। और पेरिफेरल केमो रिसेप्टर्स कहाँ होंगे? आपके नेक में, ठीक है। सो सेंट्रल केमो रिसेप्टर ब्रेन में है, पेरिफेरल केमो रिसेप्टर्स नेक में है। पेरिफेरल केमो रिसेप्टर्स की दो चीज़ें जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, बट उसने इस तरह से पेरिफेरल केमो रिसेप्टर्स करके नहीं कहा है, दैट इज़ योर आयोटिक बॉडी एंड कैरोटिड बॉडी, ठीक है। आयोटिक बॉडी एंड आयोटिक AORTIC एंड कैरोटिड बॉडी, ये रिसेप्टर्स होते हैं, पेरिफेरली प्रेजेंट होते हैं, जो आपके ब्लड प्रेशर और ब्लड में अवेलेबिलिटी ऑफ योर ऑक्सीजन, all these things determines they takes the information from this here and then they transmit to here. So ये पेरिफेरल केमो रिसेप्टर हो गया, ये सेंट्रल केमो रिसेप्टर हो गया।
सेंट्रल केमो रिसेप्टर, ओके, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, मैं इतना बड़ा वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, आई जस्ट टेल हियर सेंट्रल केमो रिसेप्टर। सो सेंट्रल केमो रिसेप्टर में क्या होता है, ब्रेन होगा, तो ब्रेन होगा तो यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। एक और चीज़, सेंट्रल केमो रिसेप्टर में एक वर्ड लिखा है सेंसिटिव टू CO2 एंड H+ आयन, ठीक है। ये वर्ड कितने CO2 सेंट्रल केमो रिसेप्टर कभी भी ऑक्सीजन के इन्फ्लुएंस में नहीं आता है, याद रखो। क्वेश्चन अगर होगा CO2 + H+, क्वेश्चन अगर होगा कि सेंट्रल केमो रिसेप्टर इज सेंसिटिव टू CO2 + H+ और only H+, only CO2 or O2, then your answer should be CO2 + H+. But if you are having a question chemoreceptors are sensitive to, ठीक है, याद करो, मतलब मार्क माई वर्ड्स, केमोरिसेप्टर्स आर, तो केमोरिसेप्टर्स जब बोल रहा है क्वेश्चन में, तो ही इज टेकिंग एज द होल योर सेंट्रल एंड पेरिफेरल बोथ, सो एट दैट टाइम टेक दिस थिंग, केमोरिसेप्टर्स इज सेंसिटिव टू 3 थिंग्स, ठीक है, CO2, H+ एंड O2. खाली केमोरिसेप्टर्स ऑलवेज दिस, बट केमोरिसेप्टर, सेंट्रल केमोरिसेप्टर और दिस थिंग, दिस टू आर स्टिमुलेटेड बाय दिस टू थिंग्स, ठीक है, CO2 + H2O, H+. सो नाउ ब्लड वेसल, यहाँ पे क्या होगा, ये ब्लड ब्रेन बैरियर है, इस जगह पे ब्रेन है, नाउ हियर इज़ योर ब्रेन एंड हियर इज़ योर ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल में इफ़ CO2 इंक्रीजेस, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, CO2, इफ़ CO2 इज़ बॉयफ्रेंड देन H+ इज हिज गर्लफ्रेंड, सो इफ़ CO2 इंक्रीजेस H+ विल ऑल्सो इंक्रीज, बट ब्लड ब्रेन बैरियर में ये चीज़ पास नहीं होगा, CO2 विल पास, ठीक है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर में CO2 पास करता है, तो दिस CO2 + H2O, वी ऑल नो दिस रिएक्शन वेरी वेल, H2CO3 in the presence of carbonic anhydrase, and this again breaks into H+ plus HCO3 minus. This H+ stimulates your सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये H+ स्टिमुलेट करता है इस तरह से सेंट्रल केमोरिसेप्टर। नाउ मार्क माई वर्ड्स अगेन, क्वेश्चन इज, थिंग इज योर सेंट्रल केमोरिसेप्टर आर सेंसिटिव टू CO2 इन ब्लड। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये डायरेक्ट वर्ड है, मतलब डायरेक्ट लाइन है, क्वेश्चंस में आ सकते हैं। सेंट्रल केमो रिसेप्टर सेंसिटिव टू CO2 इन ब्लड, देन अगेन सेंट्रल केमो रिसेप्टर्स इज स्टिमुलेटेड बाई, ठीक है, स्टिमुलेटेड बाई H+ इन CSF। अब देखो, सेंट्रल केमो रिसेप्टर इज स्टिमुलेटेड बाई H+, नीचे ऑप्शन में दे देगा सेंट्रल केमो रिसेप्टर इज स्टिमुलेटेड बाई, ऑप्शंस आर H+ इन CSF, H+ इन ब्लड, कौन सा H+, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, ब्लड में जो H+ है वो कभी भी ब्रेन में जाके स्टिमुलेशन नहीं करता है, बिकॉज H+ कैन नेवर क्रॉस दिस बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर में सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैविंग नो चार्जेस कैन पास थ्रू दिस। इसीलिए आप जो ड्रग्स भी लेते हो, हम डोपामिन अगर देना हो तो हम डायरेक्टली नहीं देते हैं, ठीक है, अल्जाइमर डिजीज में हम लीवोडोपा फॉर्म में उसे देते हैं, ठीक है, बिकॉज चार्ज पार्टिकल्स ब्लड ब्रेन बैरियर से पास नहीं कर पाएंगे, इट हैव टू बी इन दिस फॉर्म एंड अ स्मॉल molecular weight also. So central chemoreceptor, now let's see this peripheral chemoreceptors, okay, peripheral chemoreceptors. So peripheral chemoreceptors में मैंने क्या कहा था, कैरोटिड बॉडीज़ एंड एयोटिक बॉडीज़, कैरोटिड एंड एयोटिक बॉडीज़। सो इन दिस बॉडीज़ देखो, सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स इज सेंसिटिव टू CO2 and H+, बट आई हैव टोल्ड यू ऑल दैट कि केमोरिसेप्टर्स एज अ होल इज सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, CO2 and H+. So peripheral chemoreceptors must be sensitive to O2. So peripheral chemoreceptors is sensitive to O2. So this carotid and aortic bodies contains your O2 sensitive cells, ठीक है। तो ये O2 sensitive cells and this O2 sensitive cell is called your glomus cells.
ठीक है, दिस ग्लोमस सेल्स इज सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। अब कैसे ये O2 सेंसिटिव होता है वो बता देता हूँ, ठीक है। इतना डिटेल आपको पढ़ना नहीं है O2 सेंसिटिव, बट अगर आपको प्रोसेस याद मतलब थोड़ा बहुत दिमाग में है ना, तो यू कैन रिमेंबर कि O2 सेंसिटिव क्यों है, एंड देन यू कैन आंसर द क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे वी हैव वन K+ चैनल, ठीक है। ग्लोमस सेल्स में K+ चैनल होते हैं। सो ये जो K+ चैनल है, नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, K+ बाहर जाता है, ठीक है। सो व्हेन दिस K+ गोज आउट, डीपोलराइजेशन होगा, सॉरी डीपोलराइजेशन नॉर्मल मैकेनिज्म होता है नॉर्मल कंडीशन में, बट इन सपोज एंड दिस चैनल, दिस K+ चैनल इज वन थिंग, इट इज़ ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटाशियम चैनल, ठीक है। इसका नाम है ऑक्सीजन सेंसिटिव K+ चैनल। अब देखो वेन एवर देर इज ऑक्सीजन, दिस चैनल इज ओपन, ठीक है, ऑक्सीजन ओपन। जैसे ही ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर कम है ब्लड में, ठीक है, दिस चैनल, क्योंकि ये चैनल आपके ब्लड ब्रेन बैरियर के पार में नहीं है, सो ऑक्सीजन कैन रीच टू इट, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करना नहीं पड़ता है, सो ऑक्सीजन कैन रीच टू दिस। सो जैसे ही ऑक्सीजन नॉर्मल है, ठीक है, ऑक्सीजन कम हुआ तो ये चीज़ इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। पोटाशियम चैनल लो O2 में क्लोज K+ चैनल। अब K+ चैनल अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, प्लस चार्ज बढ़ना शुरू हो गया, तो व्हाट दिस कॉज डीपोलराइजेशन, ठीक है। K+ इंक्रीज हुआ, डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन हुआ तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स होते हैं हमारे, सो दिस कैल्शियम चैनल विल ब्रिंग कैल्शियम्स इनसाइड। अब दिस कैल्शियम विल रिलीज डोपामिन, सो डोपामिन then continues further react. So this is how this thing is called oxygen sensitive, ठीक है। आपका पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, बिकॉज ऑक्सीजन के कारण यहाँ पे डिपोलराइजेशन होगा कि क्या नहीं होगा, सो दैट डिसाइड्स योर ऑक्सीजन। अब ये चीज़ मैंने बता दिया, लेकिन आप अपने NCERT बुक में देखोगे वहाँ पे इन द पैराग्राफ ऑफ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एक लास्ट लाइन लिखा होगा, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम, ठीक है। मैं उसे लिख भी देता हूँ, रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम, ठीक है, रिदम इज इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट वो कह रहा है। अब मैंने तो यहाँ बता दिया आपको भाई ऑक्सीजन कंट्रोल कर रहा है पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स को, तो यू मस्ट बी थिंकिंग वेदर मैं गलत हूँ या फिर ये सेंटेंस गलत है। आई मस्ट टेल यू दोनों सेंटेंस सही है, ठीक है। ये ऑक्सीजन रेगुलेशन रेस्पिरेटरी रिदम का कंट्रोल नहीं कर रहा है, बिकॉज रेस्पिरेटरी रिदम का कंट्रोल सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स, जो मैंने इसके पहले जस्ट अभी बताया था, सेंट्रल केमोरिसेप्टर रिदम को कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि देखो CO2 और H+ उनका जो रोल है दैट इज इन द केमोसेंसिटिव एरिया विच इज़ नियर टू योर मेडुला, ठीक है, और एपन्यूस्टिक सेंटर और सब कुछ तमाम चीज़ें जो मैंने बताया। सो CO2 और H+ हमारा उस एरिया को कंट्रोल कर रहा है और वहाँ पे रेस्पिरेटरी रिदम कंट्रोल होता है। अब देखो इसी सेंटेंस को इफ़ आई चेंज कि O2 इन रोल ऑफ O2 इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम की जगह अगर मैं रेस्पिरेशन कर दूँ देन यहाँ पे मैं वर्ड इनसिग्निफिकेंट यूज़ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। सो इस चैप्टर के इस पार्ट को इसीलिए मैंने अलग से वीडियो में बताया क्योंकि दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ध्यान थोड़ा देखिए, आपको क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। वेदर केमोरिसेप्टर्स है, सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स है या रिसेप्टर्स केमोरिसेप्टर्स या फिर केमोसेंसिटिव एरियाज इन एडजेसेंट टू रिदम सेंटर, ऐसा है, ठीक है। तो आपको वर्ड्स बहुत अच्छे से देखने हैं, बस ध्यान से करना है। सो विद दिस वीडियो एंड्स हियर, बट आज से हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, मैंने टेलीग्राम चैनल का भी अपने लिंक दिया हुआ है, प्लस मैंने फेसबुक ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, वेयर यू कैन गो एंड यू विल फाइंड क्वेश्चंस, ओके। तो मैं 2 तरह के क्वेश्चंस दूंगा, एक तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दूंगा जिसमें जैसे हर चैप्टर जब एंड हो रहा है जिस वीडियो में भी उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और यू कैन गो एंड सॉल्व एंड प्रैक्टिस
एंड मोर ओवर मैं एक एक सेट दूंगा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 180 क्वेश्चंस टोटल रहेंगे, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। एंड यू कैन गो ऑल्सो विजिट टू माई ये टेलीग्राम चैनल, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, उसमें भी मैं क्वेश्चंस देता हूँ। सो यू कैन ज्वाइन बोथ फेसबुक ग्रुप एंड टेलीग्राम लिंक, ओके। So both are given in your description. Go and check there. So with this, thank you and have a nice day.